This is lecture 9 for your subject digital signal processing based on your first unit. Okay. So in this lecture we are going to learn about the cascade realization of an IIR systems. Okay. So in previous lecture we have discussed about the direct form 1 and direct form 2 for IIR system. Now we will start with the cascade realization of an IIR system. Okay, so let's start the lecture now. Let's discuss some information about the cascade realization of a IIR system. So of IIR system. Clear? So I'm just writing some important points over here in cascade form. HZ is broken into product of transfer function H1Z, H2Z, so on. Okay, let's say k number of transfer function is available over there, which are generally first order or you can say first order and second order polynomial. Okay, then when you define the H1 H2, calculate the H1 H2 HKZ, sorry, then the individual transfer function will be realized using direct form 2. So here you should have knowledge about the direct form 2 if you want to cascade realization of IIR system. Okay, so क्या करना है, break into different function, product of transfer function like H1Z, H2Z up to HKZ, and जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन आए हैं उन ट्रांसफ़र फंक्शन को यू हैव टू रियलाइज विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट फॉर्म 2 से रियलाइज करना है, देन कनेक्ट कर देना है, कैस्केड कर देना है. मीन्स H1 connected with H2 to suppose you have two transfer function H1Z, H2Z, so H1Z connected with the H2Z. Okay, it will be clear with the help of the example. So just take one example. Okay, so I am taking one example over here. Obtain the cascade realization of the system function given by
and the function is given hz equal to 1 plus 1 by 4 z inverse 1 plus 1 by 2 z inverse 1 plus 1 by 2 z inverse plus 1 by 4 z to the power minus 2. So this system function is given. Okay, now you want to cascade realization. So सबसे पहले क्या करना है आपको सॉल्यूशन में कि जो भी फंक्शन गिवन है उसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में ब्रेक करना है. ओके, so we can say suppose you have hz, so you have to break hz. So okay, now so let's hz equal to हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया 1 plus 1 by 4 z inverse upon 1 plus 1 by 2 z inverse and hb2 हमने मान लिया hbz another function and it is 1 upon 1 plus 1 by 2 z inverse plus 1 by 4 z to the power minus 2. So no problem, we can divide into two ट्रांसफ़र फंक्शन. ठीक है, ना अब आपको क्या करना है, इस एच ए जेड को आपको डिज़ाइन करना है, रियलाइज़ करना है डायरेक्ट फॉर्म 2 से. सेम यू हैव टू रियलाइज़ दिस फंक्शन यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म 2. और जब ये दोनों रियलाइज़ हो जाए तो दोनों को कनेक्ट कर देना है. सो लेट्स स्टार्टिंग विद दिस एच ए जेड से. ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन. ओके, एच ए जेड की इक्वेशन क्या है, योर एच ए जेड इक्वल टू 1 plus 1 by 4 z inverse upon 1 plus 1 by 2 z inverse. Okay, now same follow the concept of direct form 2. So direct form 2 में हम क्या लिख सकते हैं, let I'm just writing. ओके, डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या होता था, सबसे पहले हम जो हमारा डिनोमिनेटर होता था उसे लेते थे, एच वन जेड इक्वल टू हम क्या लेते थे 1 plus 1 by 2 z इनवर्स एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता था डब्ल्यू जेड अपॉन एक्स जेड. सो फ्रॉम हियर you will get the equation of wz. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एक्स जेड योर माइनस 1 by 2 z inverse your wz. Clear? So just take the inverse z transform, taking the inverse z transform of above equation. ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू जेड मतलब डब्ल्यू एन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 by 2 डब्ल्यू एन माइनस 1. सो लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन 1. नाउ एच टू जेड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका न्यूमरेटर पार्ट, एंड न्यूमरेटर पार्ट इस इक्वेशन में क्या है, दैट इज योर 1 plus 1 by 4 z इनवर्स एंड इसे क्या लिख सकते हैं हम वाई जेड अपॉन डब्ल्यू जेड. क्लियर? सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द इक्वेशन वाई जेड इक्वल टू योर डब्ल्यू जेड प्लस 1 by 4 z इनवर्स डब्ल्यू जेड. ओके, अगेन क्या करेंगे हम, टेक द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म. सो क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट वाई एन इक्वल टू डब्ल्यू एन प्लस 1 by 4
W n minus 1. Okay, so you will get this. Sorry. Now रियलाइज कर लेते हैं इसे, क्योंकि एक पोर्शन आपका हो गया, एच जेड का आपका आ गया. सो आई एम जस्ट रियलाइजेशन ऑफ द बोथ इक्वेशन. So I'm just okay, let me explain once again the how to draw the circuit. Okay, so you can see here Wn equal to क्या है, xn. So xn कोई इनपुट आ रहा होगा, so just draw the xn. किसके साथ हो रहा है, xn माइनस किससे हो रहा है, Wn माइनस 1 मीन्स कुछ आउटपुट पर रहा होगा. सो यहाँ पे लेट्स सी आई एम ड्राइविंग दी योर Wn. यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा हमें Wn. ओके, सो अब आपको क्या करना, Wn माइनस 1 है तो हमने क्या किया, एक Z इनवर्स लगा दिया और मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा आपका, -2 के -1/2 के साथ, हाफ के साथ, और ये यहाँ पे चला गया. ओके, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे आ गया योर Z इनवर्स, और यहाँ से योर -1/2 एंड दैट इज़ गोइंग टू योर xn. सो यहाँ से तो आपका क्या बन गया, ओमेगा n आ गया क्लियरली. ठीक है, अब आपको डिज़ाइन क्या करना है, ये रियलाइज़ करना है. सो दैट इज़ योर yn इक्वल टू क्या, ओमेगा n प्लस समथिंग. सो ओमेगा n प्लस के लिए हमने कुछ बना लिया, और प्लस में क्या जा रहा है, योर 1/4 ओमेगा n माइनस 1. सो ओमेगा n माइनस 1 यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे हमने क्या किया, एक 1/4 का मल्टीप्लायर लगा दिया और समेशन पे दे दिया, एंड दैट इज़ योर yn. ओके, नाउ सिंपली वी डू फॉर दी योर HBZ. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, HBZ की वैल्यू क्या है, this. So I'm just writing the HBZ over here. Okay, and HBZ की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/1 प्लस 1/2 Z इनवर्स प्लस 1/4 Z टू द पावर -2. क्लियर. सो जैसे हमने H1Z के लिए कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम किसके लिए करेंगे, HBZ के लिए. सो फ्रॉम दिस H1Z क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 Z इनवर्स प्लस 1/4 Z टू द पावर -2, एंड दिस H1Z इक्वल टू क्या होता है आपका, सॉरी, WZ अपॉन XZ. ओके, सो इसे सॉल्व कर लेंगे. आई एम जस्ट राइटिंग दी डायरेक्टली इक्वेशन. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट ओमेगा n इक्वल टू योर xn माइनस 1/2 ओमेगा n माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 1/4 ओमेगा n माइनस 2. ओके, सो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी ओमेगा. नाउ अगर इस वाली इक्वेशन से हम देखें, सॉरी इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, सो क्या होगा भाई, H1Z आ गया था ये. अब H2Z क्या हो जाएगा, सिंपली H2Z की वैल्यू क्या है, 1. सो डायरेक्टली क्या आ गया, 1. और इस H2Z को हम क्या लिख सकते हैं, YZ अपॉन ओमेगा n WZ. So from here you will get yn equal to Wn. Now अब क्या करना है, we have to realize this function and this first second function को realization करना है. So I'm just drawing the direct form for HBZ. ठीक है, क्या आ जाएगा, if you see in this equation
ठीक है, लेट्स सी दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन बी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा एन इक्वल टू क्या, एक्स एन को इनपुट आ रहा है समेशन कर दिया हमने. नाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, -1/2 ओमेगा एन -1. ठीक है, सो ऑब्वियसली ओमेगा एन इक्वल टू एक्स एन. सो एक्स एन कुछ यहाँ से आ रहा होगा और यहाँ पे आपको ओमेगा एन मिल रहा होगा. अब ओमेगा एन में क्या हो रहा है, माइनस दिस टर्म. सो हमने एक z इन्वर्स लगा दिया और वहाँ से -1/2 का मल्टीप्लायर कनेक्ट कर दिया. दूसरा क्या है, ओमेगा एन -2. सो अगेन वी हैव एडेड अनदर z इन्वर्स और यहाँ मल्टीप्लायर क्या है, -1/4. सो वी हैव मल्टीप्लाई विथ -1/4 एंड कनेक्टेड दिस इन दिस. ओके, नाउ बी इक्वेशन के लिए क्या है आपका, डायरेक्टली ओमेगा एन इक्वल टू क्या है, वाई एन. सो अब आपके पास एक तो ये आ गया, इसे हम ठीक है, फिगर 1 योर फिगर 2. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंबाइन फिगर 1 एंड फिगर 2 बस. ठीक है, सो मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ. So that was your -1/2, that was your 1/4. z इनवर्स, यहाँ पे इनपुट हमारा एक्स एन जा रहा था, सो हमने दे दिया एक्स एन. नाउ इसी के साथ हमें बाकी का कनेक्ट कर देना है. ये वाई एन हो गया आपका. सो मैंने क्या किया, सिंपली दोनों फिगर को कनेक्ट कर दिया. दैट वाज -1/2. यहीं से एक और z आ रहा था हमारा, z के पावर -1 से ये क्या था, माइनस का 1/4. सो वो भी हमने कनेक्ट कर दिया मल्टीप्लायर से और ये मैंने दोनों आपके सर्किट कंबाइन कर दिए. सो दिस होल फिगर इज नोन एज कैस्केड रियलाइजेशन. ओके, सो कैस्केड रियलाइजेशन. ओके, सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन है उसको आपको क्या करना है, जो स्मॉल ट्रांसफ़र फंक्शन में ब्रेक करना है प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन ले रहे हैं आप, वो प्रोडक्ट ऑफ द मेन फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, उसके इक्वल होना चाहिए. सो आपने क्या किया, उसे स्मॉल ट्रांसफ़र फंक्शन में ब्रेक कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन में ब्रेक हो गया वो. अब जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन आपको जो आपने डिज़ाइन किए उनको डायरेक्ट फॉर्म 2 से रियलाइज़ कर लेना. और जब जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन आप रियलाइज़ करते जा रहे हैं उनको लास्ट में क्या कर देना है, 1 by 1 कनेक्ट कर देना है, कैस्केड फॉर्म में कनेक्ट कर देना है बस. दैट विल बी योर कैस्केडेड रियलाइजेशन. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.